So, welcome, welcome to MR classes. We will discuss up to isothermal process in last session. Work done in isothermal process. How much work will done? In this session, we will discuss about adiabatic process. Adiabatic process. Adiabatic process. Adiabatic process. What is adiabatic process? You know, a thermodynamic process in which heat exchange between system and surrounding is zero. Thermodynamic system in which heat exchange heat exchange between system and surrounding system and surrounding is zero. हीट एक्सचेंज कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. दैट मीन्स डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो. डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो होगा. नाउ बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, what is first law of thermodynamics describe? Delta Q equal to delta U plus delta W. So here delta Q equal to 0. That means delta U plus delta W will be 0. इन दोनों का सम कितना होगा बेटा? 0 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. समझ में आ गई बात? One very important thing here now we will going to discuss, that is relation between thermodynamic variable in adiabatic process. Relation between thermodynamic variable in adiabatic process. Relation between thermodynamic variable in adiabatic process. If any adiabatic process occur, what is the relation between different thermodynamic variable? So first of all, we will describe PV relation. PV relation. So how we will describe PV relation in adiabatic process? Relation is, we will discover that PV gamma equal to constant. PV gamma equal to, how this relation comes? We will derive this one. So we know, in thermodynamics system, du plus dw equal to 0 for adiabatic process. For adiabatic process. This thing we know or not? Tell me fast. Du plus dw equal to 0 in adiabatic process because delta Q equal to 0. Heat exchange between system and surrounding is 0 for the adiabatic process. Now here, one very important thing we know, that du equal to Cv dt and dw equal to Pdv. We know or not know? पता है? So Cv dt plus Pdv equal to
0. This is equation number 1. This is equation number 1. Now we will take by ideal gas equation. Ideal gas equation. What is ideal gas equation? PV equal to RT for the 1 mole. PV equal to RT. Differentiate both side. Differentiate both side. So when we differentiate, you know, P and B, V and T are variable. P, V and T are variable. So here we will apply formula U into V. So first thing, P as it is, differentiation of V, that is dV, plus V as it is, differentiation of P, that is dP, equal to R, differentiation of T, that is dt. ऐसा कर सकते हैं. U into V differentiation लगा था ना. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल V का dV, V एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल P का dP, P का dP equal to R, T का dt. Now here, can I put the value of dt from, this is, now, you know, dt equal to what? dt equal to, R गैस कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करना नहीं, इसलिए हमने केवल किसका किया, t का किया, क्या हो गया वो, dt. Now tell me dt equal to what? P dv plus V dp upon R, upon R. This is equation number 2. Now, from equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2, क्या होगा बेटा equation 1 और 2 से बताओ, tell me first. We will put here value Cv, dt equal to P dv plus V dp upon R plus P dv plus P dv इक्वल टू 0. हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं पूरे का, तो ऐसे लिख दें इसको, Cv इंटू पी इंटू dv प्लस Cv इंटू वी इंटू dp प्लस ये हो जाएगा P इंटू R इंटू dv अपॉन R इक्वल टू 0. अब क्या होगा बताओ, ये R जो है किस में जाएगा बेटा, 0 में चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, R किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा. चला जाएगा नहीं चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, Cv P dv प्लस Cv V dp प्लस PR dv इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है. अब देखो बेटा, ये P dv है, ये भी क्या है, P dv है कि नहीं, ये बताओ, अरे है या नहीं है, ये P dv की टर्म है, ये भी P dv की टर्म है, दोनों में P dv का ले सकते हैं कॉमन, तो P dv कॉमन लिया, क्या बचा उन पास यहाँ पे Cv, यहाँ क्या बचा R प्लस Cv इंटू V इंटू dp इक्वल टू 0. अब यहां देखो, हमें पता है बाय मेयर रिलेशन, बाय मेयर रिलेशन, व्हाट इज मेयर रिलेशन, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, दैट व्हाट इज द Cp, Cv प्लस R. Can we put the value? Can you put value or not? Yes. Now tell me, P dv into Cp plus Cv V dp, V dp इक्वल टू 0. हम लोग Cv कॉमन ले लें पूरे में से, Cv कॉमन लेंगे क्या बचेगा उनके पास, P dv इंटू Cp अपॉन Cv प्लस V dp इक्वल टू 0. ये Cv को पूरा 0 में बेच सकते हैं. अब जो Cp अपॉन Cv होता है, यहां ध्यान देना, Cp अपॉन Cv क्या होता है बेटा पता है,
Cp upon Cv, that is known as gamma specific heat constant. Specific heat constant. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये P गामा dV प्लस V dP इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ डिवाइड बाय PV, डिवाइड बाय PV, तो क्या होगा, P गामा dV अपॉन PV प्लस V dP अपॉन PV इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। नाउ टेल मी, P से P कैंसिल हो गया, क्या आ गया, गामा dV अपॉन V प्लस ये क्या आ गया, dP अपॉन P, V से V कैंसिल, इक्वल टू 0। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट। क्या होगा इंटीग्रेशन करने से, बताओ नमन, दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन गामा कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dP अपॉन P इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। तो क्या होगा बताओ, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल कराया था मैंने इसके बारे में, ln x क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, गामा ln v प्लस ln p इक्वल टू कॉन्स्ट, किसी भी 0 होता है कुछ भी, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, याद होगी आपको, अगर पता है तो, लॉग की प्रॉपर्टी याद है, a log ऑफ b है अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log ऑफ b की पावर a आगे जो मल्टीपल होता है किसमें चला जाता है आपका, पावर में चला जाता है। किसमें चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो क्या होगा बताओ, यहां से गामा पावर में चलाएगा तो क्या आएगा, ln v की पावर गामा प्लस ln p इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक लॉग की और प्रॉपर्टी होती है नमन, याद है, ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a इंटू b, तो इसको ऐसे लिखते हैं ln p v की पावर गामा इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं पी वी की पावर गामा इक्वल टू ई की पावर कांस्टेंट, क्योंकि है पता है ना प्रॉपर्टी, एक लॉग की और होती है, पता है, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी आ गई लॉग की आपके। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ पी ऑफ ए इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू क्या होता है, बी की पावर सी। तो यहाँ पे बी की जगह क्या है, यहाँ पे बस ई है, तो ई की पावर कांस्टेंट। ई की पावर कांस्टेंट भी क्या होगा बेटा, एक कांस्टेंट ही होगा, नहीं होगा, एक कांस्टेंट है, इसका मतलब पी वी गामा इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। ये क्या करना था मुझे, हो गया प्रूफ। ये तो किस में रिलेशन हो गया, P एंड V में रिलेशन हो गया। इस तरह से हम चाहे तो किस में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन P एंड V। तो हमारे पास पहले रिलेशन क्या है, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट को क्या लिख दूं मैं, ये है कि नहीं नमन। अब दूसरा रिलेशन प्रूव करना है तो कैसे करेंगे बताओ। तो हमें पता है पी वी इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर टी। तो हमारे पास टी और वी का निकालना, पी को रिप्लेस करना है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी। तो ऐसे लिख दूं यहाँ पे आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू के, ऐसा ले सकते हैं। ये आर इधर चला जाएगा तो टी वी की पावर गामा -1, ये 1 है ना, इधर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के अपॉन आर। के अपॉन आर भी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम कहीं भी लिखते हैं ना पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर
गामा। ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ये निकाला हमने, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। ये तो आ गया टीवी का रिलेशन। अब आपको पूछे अगर कौन सा रिलेशन एक और होता है, कौन सा बच गया बताओ? रिलेशन बिटवीन P एंड T। P एंड T, तो हमें पता है कि पी वी गामा इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। और हमें ये भी पता है कि पी वी इक्वल टू क्या है? आर टी। वी को रिप्लेस करना, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी अपॉन पी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास बताओ? पी को पी रहने देंगे, इसको लिखेंगे आर की पावर गामा टी की पावर वी के ऊपर गामा है ना, और नीचे पी की पावर गामा इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट के। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? पी की पावर ऊपर 1 है, 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू के अपॉन आर की पावर गामा। ये भी क्या फिर से कांस्टेंट बन गया, इसको नया कांस्टेंट रख सकते हैं के। क्या बोल सकते हैं? नया कांस्टेंट के। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम पता है आपको? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या लिख देंगे? P1 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। That is the relation for different thermodynamic variable in adiabatic process. Now we will discuss work done in adiabatic process. How much work will done in adiabatic process? Adiabatic process. Work done in adiabatic process. Work done in adiabatic process. How much work will done in adiabatic process? Can you tell me? How much work will be done in adiabatic process? So we know one formula for the work done, that is W equal to P dV, or volume V1 to V2. Now we have to replace P because P is variable here, not a constant. If P is constant, we can directly take out, but P is not a constant, it is a variable. So we have to put the value of P. We have relation PV gamma equal to K. PV gamma equal to K. Now Randir, tell me what is the P? P equal to K upon V की power gamma. So W equal to V1 to V2 K upon V की power gamma dV. Can I write W equal to K outer V1 to V2 V की power minus gamma dV. V की power minus gamma dV. Now tell me what is the derivative integration of x to the power n dx अपॉन n+1। ये तो याद होगा सबको, याद है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W इक्वल टू के V की पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1। एन की जगह क्या है? गामा है, V1 to V2। फिर कैसे करते हैं बेटा सोल्व? पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं? अपर लिमिट पुट करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे? W इक्वल टू के V की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? नीचे जैसे लिख दूं, ये 1 माइनस गामा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास? V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं K को, तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू के V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 के साथ के 1 माइनस गामा। नाउ टेल मी, यू नो हमने पीवी गामा इक्वल टू क्या लिखा बेटा? अभी पीवी गामा इक्वल टू क्या लिखा हमने? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिखा। इसका मतलब क्या होगा? P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा? इसके पीछे रीजन क्या है कि जहां पर आपका
K है, K के साथ अगर V2 है तो इसको हम लोग इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे, और V1 है तो इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, K को हटाना है ना, तो W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, 1/1 माइनस गामा। K को लिख दे P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा, पहले से पढ़ा था। माइनस इस K की जगह लिखेंगे P1 V1 की पावर गामा, और V1 की पावर 1 माइनस गामा पहले से है। अब क्या होगा, W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा P2 V2 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, माइनस P1 V1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा। यहां तक कोई समस्या है? नहीं। अब देखो यहां से क्या होगा, W इक्वल टू 1 माइनस गामा, 1/1 माइनस गामा, ये क्या हो गया P2 V2, क्योंकि गामा से गामा कैंसिल हो गया, माइनस P1 V1। अब वी नो PV इक्वल टू NRT, ये होता है कि नहीं होता है? PV इक्वल टू NRT होता नहीं होता है? इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू NRT1 एंड P2 V2 NRT2। तो यहां से क्या होगा बताओ, W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा NRT2 माइनस NRT1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, NR बाहर ले लें इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। समझ में आ गई बात? अब मैं इसमें से नीचे से गामा कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। W इक्वल टू क्या आएगा NR, एक माइनस यहाँ से बाहर लेते हैं, एक आ जाएगा गामा -1 लिख सकते हैं इसको, गामा -1, और एक हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा T1 माइनस T2, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा वापस से, W इक्वल टू क्या हो जाएगा NR गामा -1 T1 माइनस। This is the work done in adiabatic process. This is the work done in adiabatic process. So adiabatic process is a process in which heat exchange between system and surrounding is 0. So we have discussed complete concept of adiabatic process. We start with relation between adiabatic process variables. PV gamma equal to constant. We derive that. Then we derive for the work done. Okay. Next, one important law that we forgot, that is zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. What is zeroth law of thermodynamics? You know, according to zeroth law of thermodynamics, if two systems A and B are simultaneously in thermal equilibrium with the system C, this is A, this is B, and this is C. This is conductive wall. This is conductive wall. And this is insulated wall. Now, if it is said A and B both are in thermal equilibrium with C, so TA equal to TC and TB equal to TC, then TA will be equal to TB. This is the zeroth law of thermodynamics. According to zeroth law of thermodynamics, if two systems A and B simultaneously are in thermal equilibrium with system C, then these two systems will be in thermal equilibrium. Okay, so that's all for this session. See you in next session for the next part of this chapter. तब तक के लिए धन्यवाद।